محسوس کروں گی بتانے میں کہ جب اس پروگرام کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو سب سے زیادہ 20 دن میں جو کنسرن تھے وہ نذیر خالد صاحب تھے. نذیر خالد صاحب بہت اچھے رائٹر بھی ہیں, محقق بھی ہیں اور سابقہ تعلقات عامہ کے آفیسر بھی ہیں, ڈائریکٹر رہے, بہاولپور میں بھی رہے, لاہور میں بھی. میں ان کی اتنی مشکور ہوں, یہ بہت ان کے مشورے اور سنسیریٹی آج کے شو کو کامیاب بنانے میں ان کا بہت سارا کردار ہے. نذیر صاحب یو ویلکم ٹو ملتان. السلام علیکم. ہماری جو امام ہے وہ مائی ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. پیسوں والے اگر کھڑے ہیں, الفاظ والے اگر کھڑے ہیں, صداکار کھڑے ہیں, تو تم بھی جا کے چلے تو جاؤ, کیا ہو جائے گا. تو میں اس حوصلے کے ساتھ آ گیا ہوں یہاں پہ. میرے پاس کوئی بہت زیادہ باتیں اس طرح نہیں ہیں, لیکن میں میڈم جی کو ماں جی کہتا ہوں, وہ مجھے بھائی کہتی ہیں. سریا ملتانی صاحبہ جو ہے, انہوں نے جس مشکل سے کلاسیکل کا, اگر جن لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کلاسیکل کیا چیز ہے, کتنی مشکل ہے. یہ ایک طرف میتھ ہے, میتھمیٹکس, ایک طرف یہ فزکس ہے. فزکس کا وہ چیپٹر ہے جو ساؤنڈ سے ڈیل کرتا ہے, اور ان دونوں کو ملا کے آرٹ کی شکل میں پیش کرنا جو ہے یہ کلاسیکل ہے. کاش یہاں پہ آج کوئی شام 84 گھرانہ کا کوئی ایک فرد کھڑا ہوتا, یہاں پہ کوئی پٹیالہ گھرانہ کا کھڑا ہوتا, یہاں پہ گوالیار گھرانہ کا حیدرآباد سے کوئی آیا ہوتا بندہ, اور وہ بات کرتا کہ میڈم جی کا گائکی میں, کلاسیکل گائکی میں ان کا مقام کیا ہے. یہ جو انہوں نے گیت گایا ہے, اپنا کافی گائی ہے, پیلو پکیاں نہیں وے, تو مجھے بتائیں اگر آج خواجہ صاحب ہوتے تو وہ یہ نہ کہتے کہ سریا میری ملنگنی, میری مریدنی, یہ کافی اب میری نہیں ہے, یہ اب کافی آپ کی ہوگی. جیسے میڈم نے ایک اپنی اکیڈمی, ادب کی اکیڈمی, تربیت کی اکیڈمی سے راحت کی تربیت کی, تعلیمی اکیڈمی میں جانے سے پہلے تو ماں کی گود جو ہے پہلی درسگاہ, اور ان کی جو درسگاہ سے جو انہوں نے عبادت کی طرح ماں کی ساری چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اب میں راج سے گزارش کروں گی کہ راج جی وہ ڈاکومنٹری آپ دکھائیں, چونکہ ہمیشہ ہی زندگی میں باقی کام اور مقابلہ سخت ہوتا ہے, تو ڈاکومنٹری کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم کم تھا, لیکن چاہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کچھ امی کی پکچرز, کچھ گانے, کچھ تھوڑی سی لائف ہسٹری شیئر کریں. اس میں بہت سی کوتاہیاں ہیں. میں ہمارے جو کرٹکس ہیں وہ کہیں گے اس میں یہ بھی ٹھیک نہیں تھا, وہ بھی نہیں تھا, کوئی ایک آدھ پکچر بھی صحیح نہیں لگی, بات کچھ اور ہی تصویر. تو پلیز آپ ان کوتاہیوں کو نظر انداز کیجیے گا, کیونکہ ایک مشکل کام ہوتا ہے ٹیکنیکل, بار بار تصویریں بدلنا کرنا. اینی وے ہم یہ چاہتے تھے کہ تھوڑی سی ان کی امی کی لائف ہسٹری شیئر کریں, ان کے تھوڑے گیت بھی آپ کو سنوائیں ہم, جو ان کا کریئر کا آغاز تھا اور بہت سے لوگ نہیں جانتے, تو اس سے متعارف کرائیں آپ سب. سریا ملتانی کا فطری گائکہ ہے. قدرت نے ان کے سریلے گلے میں بے پناہ جاذبیت پیدا کی ہے. ان کا تعلق گائے گھرانے سے ہے اور 1940 میں ان کی پیدائش ہوئی. ان کی والدہ نہایت نیک عورت تھی. انہوں نے سریا کی تربیت نہایت عمدہ طریقے سے کی. ان کے والد کا نام خلیل الرحمان تھا, لیکن وہ 11 ماہ کی تھی جب ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. سریا ملتانی کی والدہ
माई अला वसाई मुल्तान की कदीम गिलानी खानवादे के बुजुर्ग पीर रजा शाह गिलानी की मुरीद थी और वहीं पर सुरैया के उस्ताद गुलाम नबी खान साहब सारंगी नवाज, जिनका ताल्लुक दिल्ली घराने से था, वो भी अपने पीर की ज़ियारत के लिए वहाँ पर आया करते थे। सैयद मोहम्मद रजा शाह गिलानी की दुआ से सुरैया मुल्तानिकर को ऐसा उस्ताद मिला जिसने दिन रात करके उनको क्लासिकल मौसीकी के असलूब से रुशनास कराया। उस्ताद गुलाम नबी खान साहब सुरैया मुल्तानिकर को कम से कम दिन में 10 घंटे की तालीम दिया करते थे। चूँकि सुरैया को राग विद्या से इश्क की हद तक लगाव था, इसलिए वो बहुत जल्द आरोही, अमरोही और रागों की शक्लें याद करने में बाकमाल ठहरी। कुछ अरसा क्लासिकल मौसीकी की तरबियत हासिल करने के बाद सुरैया मुल्तानिकर को उनके उस्ताद गुलाम नबी खान साहब कराची में मुकीम इस बड़े सगीर के सबसे बड़े उस्ताद मुंदू खान साहब सारंगी नवाज के पास लेकर गए, जिनको वो ये सुनाने गए कि क्या मैंने बच्ची की बुनियाद ठीक रखी है तालीम में। जब उन्होंने उन्हें सुना तो उन्होंने उनको बहुत शाबाश दी। ये वो वक्त था जब सुरैया की किस्मत का सितारा चमक उठा। कराची में उनको सरदार बेगम ने और वहाँ और भी बड़े बड़े असातिज़ा ने उनका गाना सुना और उनको कामयाबी की दुआएं दी। यही वो मोड़ था जब सुरैया एक बच्ची छोटी सी अपने नाम को आगे लेकर चली और वहीं पर कुछ लोग तशरीफ रखते थे जिन्होंने सुरैया को मुल्तानिकर का खिताब दिया और बुंदू खान साहब ने दुआ दी कि इसको मेरा दिया हुआ नाम समझे और कभी भी नहीं बदलना, इस नाम को बहुत भाग लगेंगे। सुरैया मुल्तानिकर की ये खुशकिस्मती थी कि उनके घर के करीब मुल्तान के मशहूर गायकों और साजिंदों का महला भेड़ी पोतरा आबाद था। इस ज़माने में भेड़ी पोतरों के यहाँ पाको हिंद के नाम पर गवैये आया करते थे, जिनमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद तवक्कल हुसैन खान साहब और उस्ताद छोटे गुलाम अली खान शामिल हैं। इस दौर में इन असातिज़ा के गाने की मुख्तलिफ सूरतों और क्लासिकल के रमूज को जानने का सुरैया मुल्तानिकर को मज़ीद मौका मिला। ये वो ज़माना था जब क्लासिकल मौसीकी अपने अरूज पर थी। ये वो वक्त था जब सुरैया ने इब्तिदा में ख्याल की गायकी को अपनी मेहनत से और अपने उस्ताद की रहनुमाई से उसको खूब सीखा और ज़िंदगी भर उसका फल खाया। 1956 में सुरैया मुल्तानिकर अपनी वालदा के हमरा रेडियो पाकिस्तान लाहौर ऑडिशन के लिए महमूद नज़ामी साहब की दावत पर तशरीफ़ ले गए। रेडियो पाकिस्तान उस ज़माने में फ़न लतीफ़ा का मुस्तनद इदारा था। सुरैया का कई घंटे तक ऑडिशन जारी रहा, जिसमें मुल्क के नामवर गायक और साजिंदों ने उनसे मुख्तलिफ सवाल किए क्लासिकल मौसीकी के ऊपर, और ये उनकी वाक़फ़ियत थी और उनका रागों और बंदिशों पर अबूर और महारत थी कि सुरैया मुल्तानिकर उस ऑडिशन में पहली बार ही कामयाब हो गई और रेडियो लाहौर पर उनका आना जाना शुरू हुआ। उस वक्त रेडियो में एक डिटेल भेजी जाती थी कि हर वक्त का राग मुख्तलिफ होता था और सुरैया को उस वक्त इतने राग याद थे कि माशाल्लाह वो उसमें कामयाब ठहरी और उनकी आवाज़ के जादू ने मुल्क के तूलो अर्ज़ में उन्हें मकबूल बना दिया। सुरैया मुल्तानिकर ने नीम क्लासिकल मौसीकी के अलावा गज़ल, गीत, सरायकी काफ़ी, दोड़ा भी खूब परफॉर्म किया। मुख्तलिफ महाफिल में, रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और मुख्तलिफ फंक्शंस में उनकी परफॉर्मेंस ने धूम मचा दी। मगर सबसे ज़्यादा उनका जो मकबूल गाना है, बड़े बेमुरबत हैं, ये हुस्न वाले, जब उन्होंने पहली बार गॉर्डन कॉलेज में गाया 1961 में, तो उसने शोहरत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शोहरत देखते हुए 5000 ने बाद में उसको अपनी फिल्म बदनाम में 1964 में उस गाने को शामिल किया और फिर तो सुरैया की शोहरत पाको हिंद में बहुत ही ज़्यादा फैल गई और उनकी मौसीकी का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जब उनका ये गाना मकबूल हुआ, बड़े बेमुरबत है ये हुस्न वाले, तो बहुत से मौसीकारों ने उनको इसरार किया कि वो मुल्तान को छोड़कर लाहौर में सकूनत अख्तियार करें। लेकिन सुरैया मुल्तानिकर की उन्हीं दिनों में शादी भी हो चुकी थी, घरेलू मसरूफियात और अपने बच्चों की वजह से वो कभी भी लाहौर में मुंतकिल ना हुई।
सुरैया मुल्तानीकर ने उस ज़माने में पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस पर, जिसमें ढाका, चट्टागोंग वगैरह तमाम स्टेशंस शामिल हैं, वहाँ भी परफॉर्मेंस करती रही। फिर बैरूनी मुल्क में भी उनकी खूब पजीराई होती रही। सुरैया मुल्तानीकर ने रशीद अत्रे, मास्टर इनायत हुसैन, ए हमीद, तसद्दुक़ हुसैन जैसे बड़े बड़े मौसीकारों ने उनको फिल्मी गानों पर बहुत इसरार किया, मगर वो मुल्तान से बाहर कभी भी रहने को तैयार ना हुए। ताहम उनके रिकॉर्ड खूब बिके और उनकी मौसीकी के शायकीन में रोज़ बरोज़ इजाफा होता गया। क्लासिकल और नीम क्लासिकल के साथ साथ सुरैया मुल्तानीकर काफ़ी गायकी में भी अबूर रखती हैं। काफ़ी में उनका अछूता अंदाज लोगों के दिलों को लुभा गया। ये वो दौर था जब काफ़ी में बड़े बड़े गायक अपना नाम बना चुके थे, जिसमें ज़ाहिदा परवीन साहिबा, हुसैन बख्श ठाडी और बड़े बड़े गायक मौजूद थे। उसमें भी सुरैया ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। काफ़ी का लहजा उनका बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि उनका ताल्लुक़ मुल्तान से था और मुल्तानी काफ़ी इसको कहा जाता था, और उन्होंने ही उस्ताद जमाल से बाकायदा इसकी तरबियत हासिल की और इस पर भी उन्होंने अबूर हासिल किया और उनकी मुख्तलिफ काफ़ियाँ बहुत मकबूल हुई, जिनमें हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ियाँ और दूसरे शुरा की काफ़ियों को बाकमाल और अरूज हासिल हुआ। सुरैया मुल्तानीकर ने काफ़ी गायकी पर अबूर हासिल किया और हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद की शायरी को और उनकी काफ़ियों को घर घर पहुँचाया। उनकी आवाज़ में जो शीरीनी और मिठास है, उसका असर उनके सुनने वाले ख़ास तौर पर अपनी रूह पर महसूस करते हैं। सुरैया मुल्तानीकर का गज़ल गायकी में अपना एक मुनफरिद और अछूता अंदाज है। गज़ल तो नहीं थी, वो तो लगता था जैसे आप ठुमरी सुनते हो। उन्होंने बड़े बड़े असातिज़ा को इतनी खूबसूरती से गाया कि उनकी गज़लों को तमाम सुनने वालों ने सराहा। बड़े असातिज़ा में मीर तकी मीर, दर्द, गालिब, दातेलवी और अहद असर के शायर नासिर काज़मी, फराज को, सैफ को उन्होंने खूब निभाया और उनके सुनने वालों ने उनकी सोज़ो गुदास और आवाज़ का खूब लुत्फ़ उठाया।
मौसीकी की तमाम असनाफ को बहुत महारत से गाया, जिसमें क्लासिकल, नीम क्लासिकल, ठुमरी, गजल, गीत, सराइकी गीत और सराइकी काफ़ी शामिल हैं। मौसीकी में सुरैया मुल्तानिकर को उनकी खिदमत के एवज़ में मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया। जब उन्होंने फिल्म में गाना गाया, 2 बार उनको निगार अवार्ड दिया गया। गुलाम फरीद अवार्ड से उनको मुत्तईद बार नवाजा गया। रेडियो पाकिस्तान से और पाकिस्तान टेलीविज़न ने उनको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स दिए। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको तमगा हुस्न कारकर्दगी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1986 में नवाजा। 2009 में उनको सितारा इम्तियाज़ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नवाजा। और सबसे बड़ा अवार्ड अवाम का है, जो उनसे मोहब्बत, अकीदत और उनकी बेपनाह इज़्ज़त करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने सुरैया मुल्तानिकर की मौसीकी और उनकी खिदमत से फ़ायदा उठाया, जिसमें हमारा सबसे पहले मुल्तान में नेशनल सेंटर, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में म्यूज़िक सुपरवाइज़र के फ़राइज़ अंजाम दिए। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक क्लासेस शुरू कराने और म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट बनाने में सुरैया मुल्तानिकर ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और वहाँ वो म्यूज़िक सुपरवाइज़र भी रहीं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA लाहौर और पाकिस्तान का एक बहुत मुतबर और मुस्तनद इदारा है, उसके भी म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट में सुरैया मुल्तानिकर बाकायदा हिस्सा रहीं और उन्होंने उनके खिदमात से फ़ायदा उठाया। सुरैया मुल्तानिकर एक कदावर शख्सियत है, जिसमें अना है, हुस्न जमाल में लिपटा वकार है, एतमाद की फरावानी है, तबीयत में दरवेशी और फ़कीरी है, रहम दिली और गरीब परवरी फर्जियत बनकर हमा वक्त उन पर तारी रहती है। इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत और इतनी शोहरत बहुत कम फनकारों के नसीब में आती है, जो सुरैया मुल्तानिकर को मिली। वो हमारे मुल्तान की आन और शान है। बहुत शुक्रिया कि आपने स्क्रिप्ट तहरीर किया, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू सुनने को मिली, लेकिन उसमें मेहनत जो की हमारी राहत बीबी ने की और हमारे रफ़ीक हैदरी मरहूम का मैं जिक्र करता चलूँ कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की वो आवाज़ जिसने बहुत सारे गीत भी गाए और बाजो प्यार की कोई दुनिया में गाया लोगों ने, उसी की धुन बनी हुई, धुन तो गाती थी और थी, लेकिन गाया उन्होंने। बहरहाल उनके बेटे हैं हमारे हैदरी बिरादरान
पिछले दिनों मुलाकात के लिए आए, उनकी तैयार की हुई और पेशकश है सलीम कैसर भाई, आपने बड़ी मेहनत से ये किया कि मैं अपने इंतहाई मोहतरम मेरे अपने सीनियर रेडियो पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम अफसाना निगार मुल्क के बहुत बड़े और साथ साथ मुहक्किक भी और मौसीकी पे वाकई बहुत अबूर रखने वाले मोहतरम मंजूर अली तलहा साहब से गुजारिश करूँगा खानेवाल से इस सख्त मौसम में तशरीफ़ लाए हैं मैडम की मोहब्बत में। मैं तशरीफ़ लाने के लिए अर्ज़ करूँगा, तशरीफ़ लाइए अली तलहा साहब और अपने ख्यालात से हमें नवाजें। साहिबा सलीम कैसर साहब और महबूब साहब, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सूर्य मुल्तानी करके लिए इस उम्दा नशिस्त का एहतमाम किया, ताकि इन्हें दुआ है रज़ा शाह गिलानी साहब की, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी के नाना हैं और बहुत कम लोगों को शायद इल्म हो या ज़्यादा को इल्म हो कि वो सितार ऐसा बजाते थे कि लोग रो करते। कमाल के इंसान थे। सुरैया साहिबा को जब अपने इनके पास ले गए, उनको दुआ भी दी और उसके बाद जिस तरह बता रही थी रात कि ये कराची में हिंदू खान साहब और वहाँ इनकी ने बताया था कि महमूद निज़ामी से मुलाकात हुई। महमूद निज़ामी डॉक्टर अनवार साहब जानते हैं कि कमाल के अदीब थे। उन्होंने नज़रनामा के नाम से एक सियाहतनामा भी लिखा था, जिस तरह सुरैया साहब ने सराइकी को एक ज़बान के तौर पर पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया, ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। पूरा मुल्तान और जनूबी पंजाब या सराकिस्तान इनकी आवाज़ में मौजूद है। 66-7 उसमें आपने मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को गज़ल गाई, तो मैंने तो ऐसी गज़ल कही नहीं सुनी। अच्छा, लेकिन आपसे गिला ये है कि आपने खान साहब गुलाम नबी खान साहब की नवाज उनका कहा न मानो इस कुफर का जो गाना आप गा रहे थे क्लासिकल, वो वो छोड़ा नहीं, लेकिन कामिलन उसमें आप इन्वॉल्व नहीं, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि दूसरी बदनाम बड़े बड़े मरवत जैसा गाना कि इसके रिकॉर्ड का जो मटीरियल था वो ख़त्म हो गया था, इतना भी। और इंडिया में इनके गाने स्मगलिंग हो भी गए थे, बड़े बड़े मरवत। अच्छा, इसके मैं कहता हूँ कि जिन्होंने अच्छी महबूब साहब सराय की सुननी है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो सुरैया की काफ़ी सुननी है ना। अच्छा, सुरैया साहब ने सिर्फ मौसीकी के मैदान में नहीं बल्कि लिसानियात के मैदान में लाशूरी तौर पर इतनी खिदमत की है कि वो हमेशा जिंदा रहे। और आज के जो ज़्यादातर हमारे आर्टिस्ट हैं वो नौजवान हैं, और राहत की ये कोशिश थी कि हमारे जो सीनियर हैं उनके साथ मेल रहे, तालमेल हो, उनके साथ जुड़े रहे हमारे आज के नौजवान। और मैं दावत देसा थोड़ी पुरजोर ताड़ियां दे विच अदील मजहर को ओ आते अपनी आवाज़ दे विच आप सबको महसूस करे से। तुझे को आया चलना जलवा देखा, तुझे को जो यहाँ जलवा फरमान देखा, तुझे को जो यहाँ जलवा फरमान देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा, तुझे को जो यहाँ जलवा फरमान देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा,
असलम इसको परफॉर्म करेंगी, आपको मेरा अकीदत पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा अनिला असलम साहब।